ہوں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نے وہ تو پیشی آگے کی جا تھی۔ کے، وہ تو سر انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ میں آگے جا کے کہا ہے، یہ جہاں پر تو پہلے یہ ساری میں باتیں نے بیان اکٹھی پیش دیکھنی کیا پڑیں گی نا، بیچ میں سے ایک نکال کے تو آپ اس پہ بحث شروع کر دیں کہ یہ کہا ہے اس لیے یہ ہو گیا، یہ تو نہیں بات چلتی۔ اچھا چلیں بات اسی کے بات تو اوپر یہ کہ آپ آ آپ کو جائیں اوور جناب، آل جدھر دیکھنا سے پڑے گا۔ آپ آ رہے ہیں بٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ جدھر سے بھی آ رہے ہیں نا، آپ مرزا صاحب کو یہاں پر غلط ثابت کر رہے ہیں۔ میں تو اپنا نہیں ایک میں لفظ بھی بالکل نہیں ڈال غلط رہا، کام نہیں کر رہا، انہوں نے میں تو بالکل ایک صحیح لفظ کہا بھی ہے، اپنا نہیں لیکن ڈال میں رہا، میں تو صرف جو یہ سامنے عرض کر لکھا رہا ہوا ہوں ہے کہ وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ان کی ہاں جی ساری باتوں کو اکٹھا لیں، یار نہ میں کہ چاہتا ہوں کہ تشریح آپ کر ان کے اس کو کو پکڑ بات لیں کرنے آپ۔ دیں، ان کا ڈاکٹر صاحب موقع آپ درست کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں سمجھاتا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دے تو۔ ہاں جی ضرور کریں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، ان کی سمجھ میں کوئی کمی پیشی ہے تو پھر ہی واٹس ایپ آپ بات کریں نا، اگر ان کے وہ اسپیچ لیس ہو گئے ہیں تو۔ انہوں نے نہیں اجازت میں دے دی ہے، وہ آپ اسپیچ کو لیس نہیں، نہیں ان ہوں، کے میں پاس درست کہہ ایسے رہے ہوں۔ ہیں۔ اگر ان کے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ بولیے نا۔ میری بات سنیں یوسفی صاحب، آپ بول رہے ہیں نا، مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک صاف لکھی تحریر کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اب بیچ سامنے میں سے چند کیا لفظ لکھا ہوا اٹھا ذرا کے تو پڑھ اس کے پہ سنا اپنا دیں سر، مطلب دے رہے یہ ہیں۔ سامنے آیت بھی پڑھ کے سنا دیں، اور اس کے نیچے مرزا صاحب نے کیا ترجمہ میں نے کیا بتایا پڑھ کہ کے سنا قرآن دیں۔ کریم کی ایک آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، اسے لے کے وہاں پہ کہنا شروع کر دوں کہ اپنی نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ او میرے بھائی، میں نے آپ کو ایک نہیں 5 جگہوں سے یہی آیت کا بے ترجمہ شک مرزا صاحب کے بے ہاتھ شک میں سے آپ نے دکھا رہا ہوں۔ ہاں جی بے شک آپ نے ایک 5 جگہ جگہوں سے سے نہیں دکھایا، دکھایا ہے۔ 5 جگہوں سے دکھایا ہے میرے بھائی۔ میری بات بھی سن لینا، بے شک آپ 5 کیا 50 جگہ سے بھی دکھا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ باقی جگہ پہ بھی دیکھنا پڑے گا، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آپ اسی دکھائیں جہاں کتاب پر کے مرزا آخر پہ آ صاحب نے کے۔ اس سے فرق ترجمہ کیا ہو، سورہ ہاں جی احزاب کی آیت 40 کا، آپ دکھائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو 5 جگہ میں پہ انہیں دکھا سمجھا دیا ہے۔ دیتا ہوں، یہ آپ اور سمجھانا بعد میں ہے، سمجھائیں بعد میں، پہلے مجھے پیج نمبر دکھائیں، میں یہاں پر سامنے لگاؤں، دیکھیں کہ مرزا صاحب نے سورہ احزاب کی آیت 40 کا کہیں پر کوئی اور ترجمہ کیا ہو، وہ بتائیں، مجھے ریفرنس دیں۔ ہاں جی میں دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو اب میں بات ہاں جی شروع کروں۔ کریں بتائیں آپ، میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے اس جو میں ان کو دے سکوں ریفرنس۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی مرزا صاحب نے یہ جو ترجمہ کیا ہے یا تشریح کی ہے بالکل درست کی ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ کسی نبی کو ختم نہیں کیا، ہر نبی خود ختم ہوا ہے، وفات پائی ہے، روحانی طور پہ ختم کیا ہے، تمام انبیاء کے سلسلے روحانی طور پہ ختم کر کے تمام رحمتیں، تمام انعامات، تمام نعمتیں وہ اپنے سلسلے میں لے آئے، تو انہوں نے جسمانی طور پہ ختم نہیں کیا، روحانی طور پہ ختم کیا، اور وہ ہم مانتے ہیں۔ اور عیسیٰ نیچے تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ بھی اس لیے دوبارہ نہیں آ سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے منقطع کر دیے ہیں۔ تو بالکل درست کہا ہے، 100% درست کہا ہے، اس میں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، بھٹ صاحب ایک مسئلہ منٹ، یہ ہے کہ میں سورہ دوسرے بھی اتنا، احزاب بھٹ کی صاحب آیت یہ جو نمبر 40 کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ ختم کرنے والا نبیوں کو، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہم نے وہ ترجمہ 5 جگہ سے مرزا صاحب کے اپنا کتابوں سے کیا ہوا آپ کے سامنے ابھی دکھا دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کے علاوہ اور بھی ترجمہ کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ دکھاؤ کہاں پر ہے۔ آپ نے کہا میں دیتا ہوں ریفرنس، آپ آئیں، آپ دینے میں ناکام رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اب مسئلہ پھر آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ احزاب کا آیت نمبر 40 کا ترجمہ ختم کرنے والا نبیوں کا، اس کے علاوہ مرزا صاحب نے جہاں پر کیا وہ ریفرنس دیں۔ ہاں جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ترجمے آپ نے پیش کیے ہیں 5 بالکل درست پیش کیے ہیں، اور بالکل درست مرزا صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں نے اب دلیل آپ کو دی ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ترجمہ اور بھی کیا ہے، مہر کیا ہے، ایک منٹ ٹھیک ہے۔ بھٹ صاحب آپ نے دلیل کوئی نہیں دی، آئیے اس طرح نہ اور چلے، کوئی دلیل نہیں دلیل دی، کوئی میری نہیں آپ دی، بات تو سنو، سامنے بیٹھے ہوئے یہ ہیں کوئی ڈاکٹر دلیل صاحب۔ دلیل نہیں، نہیں تو یہ ہیلو دلیل کوئی ہیلو دلیل نہیں پڑھ کے پہلے سنائیں۔ سن لیں بٹ یا صاحب، بے والا بٹ صاحب ذرا سن لیں، وہ جو سامنے اوپر بیٹھے ہوئے نا آپ کے دوست، وہ انکار کر چکے ہیں کہ اس کا آیت کا ترجمہ ختم کرنے والا نبیوں کا غلط ہے جو یوسفی کر رہا ہے، وہی ترجمہ وہی الفاظ مرزا صاحب کے دکھائے گئے ہیں تو وہ صحیح ہو گئے ہیں۔ یہ چمتکار کیسے ہوا، یہ سمجھائیں ہمیں۔ اچھا میری بات سنیں نا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پہ وہ خود اپنی بات کریں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درست لکھا ہے، درست ترجمہ کیا ہے، اور ہم مطلب بھی درست لیتے ہیں۔ اب اگر ان سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، ڈاکٹر صاحب غلطی ہوگی تو کہہ دیں یہ نہیں علم تھا، یا اگر ہے کوئی وضاحت دوسری کرنی ہے تو کر دیں، جب وہ موجود ہے تو پھر وہ بہتر اپنی بات کریں۔ ہاں جی مجھے اجازت دیں بات کرنے کی، کیونکہ عموماً یا ہر دفعہ جب یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں
खातमुन नबीन का, तो वो यही करते हैं कि नबी ख़त्म हो गए और आइंदा वो इस बात में जैसे आपने किया ना कि वो जिस्मानी तौर पे ख़त्म हो गई या रूहानी के तौर पे, ये इस बात की फ़र्क नहीं करते, हर लिहाज से ख़त्म। इस लिहाज से मैंने उन्हें कहा था कि ये तर्जुमा गलत है। लेकिन जब उन्होंने मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का तर्जुमा पेश किया है, तो मैंने उन्हें यही बताया है कि ये तर्जुमा सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस भी हैं आपको। और ख़ुद इन्होंने कहा है कि ये जो आखिर पे जो उन्होंने किताब बताई थी एक गलती का ज़ाला, इन्होंने ख़ुद कहा है कि आगे जाके मिर्ज़ा साहब ने इसकी तशरीह की है कि ईसा अलैहिस्सलाम कि वो ख़ुद कैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादा किए हुए ईसा इब्ने मरियम है। उन्होंने ये भी तो कहा है ना। तो मेरा यही कहने का मतलब था, जब मैंने यूसुफी साहब के तर्जमे का इनकार किया तो इस लिहाज से किया कि ये लोग, ये यूसुफी साहब और इनके साथी जो है ना, वो ऐसे ही ख़त्म ये नबूवत का जो उन्होंने मुहावरा ख़त्म होने बोला है कहते कि हैं, तुम्हारा जाना कुत्ता ख़त्म कुत्ता कर हमारा देते कुत्ता टॉमी, वो ठीक है ना? सही बोला ना मैंने मुहावरा? हैं। नहीं, आपने गलत बोला है। अच्छा, दूसरा मोहर का भी आपने इस्लाह कर ली अपनी कि ना ये मोहर तस्दीक की है ना ये मोहर इजरा की है? ये मोहर मोर असल में होती खातमियत सिर्फ की मोर है। होती सिर्फ मोहर खातमियत आइडेंटिफिकेशन की के है मेरे लिए भाई, या याद रखना। कंफर्मेशन के लिए। मोर अच्छा सिर्फ यार, इसकी आप होती है। आए राजा भाई, इनसे बात करें, मेरे को कॉल आ रही है, मैं इंशाल्लाह बाद में आता हूँ, आप बात करें। अब आपने जिस मैंने चीज को अपना कहा मुद्दा कि पेश मैंने कर दिया मैंने राजा भाई, आपने जिस बॉल आपके कोर्ट में। आपने आपने जिस चीज़ से माजरत की है कि आपने ख़ातम का तर्जमा जो है मुझे आपने कहा कि आपने गलत किया है। जब मिर्ज़ा साहब का तर्जमा निकाल के बताया, अभी आपने माजरत के लिए, अब आप जो पीछे जब राजा साहब से आप बात कर रहे थे इस्तिगासा के हवाले से, आपका जो मज़रनामा था, अब उसके अंदर कोई कमी रह गई है कि उसका शामिल करना ज़रूरी था, जब उसके अंदर सारी पूरी कार्रवाई के अंदर बात ही क्लियर हो गई है। ये तर्जमे हमारे सामने थे उस वक्त भी, हमारे उलमा के सामने, तो इस्तिगासे की ज़रूरत थी वहाँ पे उसको शामिल करने की। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं जनाब, आप हाँ ही जी, बात कर रहे थे हाँ जी। माजरनामे पे, अभी बात कर रहे थे। देखिए ना, अब जिस माजरनामे को आप शामिल करना चाह रहे थे उसकी जरूरत थी, जब आप कह रहे थे खातम नबी में बात ही नहीं हुई, तो मिर्जा साहब ने जब खुद लिखा हुआ है, तो जब उन्होंने खुद लिखा हुआ कि खातम का मतलब ये वो ये लेते हैं, तो उस पर और मजीद क्या गुफ्तगू करने की जरूरत है? टाइम ज़ाया करना था। राजा साहब, मैं अर्ज करूंगा कि जब ये असम्बली की कार्रवाई शाया की गई, तो यही कहा गया ना कि यही समझा गया ना कि सारी की सारी कार्रवाई है जो असम्बली में हुई, और जितना दिया गया है उसमें यही दिखाया ना कि क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ। तो अगर वो पूरी की पूरी थी, तो दयानतदारी का तकाजा तो ये था कि जो शुरू में जिसके बाद इसके एडजर्न किया गया था, जब पहले हमारे वफद को बुला के उनका मौक़िफ़ सुना गया, तो उस मौक़िफ़ को भी इस असम्बली के कार्रवाई के अंदर ही छापना चाहिए था। इसके अलावा ज़मीमें थे, वो भी नहीं छापे गए। तो इसलिए आप मुकम्मल कार्रवाई तो इसे नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक नामुकम्मल कार्रवाई पेश की गई, जिसमें हमारा मौक़िफ़ जो था वो बीच में शामिल नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता था आपको। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब देखें, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। बात ये है कि जो जितनी बात मिर्ज़ा नासिर साहब से की गई उसके साथ आपका क्या इख्तिलाफ है, बात ये। देखिए ना, ये तो एक लंबी बात है, लंबी नहीं, बहस लंबी है। नहीं है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। बट उसमें तो मुख्तलिफ है कि आपकी तादाद कितनी नहीं है, आप नहीं कितने नहीं, नहीं मुल्कों में तादाद को हैं, छोड़े, इस किस्म के सवाल थे उधर जिनका तो खत्म नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वो भी बातें डिस्कस हुई हैं। मैं आपसे वो इसलिए की गई कि वो केस बिल्डअप किया गया कि आपकी जमात जो है वो कैसे अपने लोगों को मिसलीड करती है, चाहे वो तादाद की बात हो, चाहे वो ख़त्म नबूवत की बात हो, चाहे वो ममदी बेगम की बात हो, चाहे वो अब्दुल्ला अथम की बात हो, चाहे वो हयात मसीह वफात मसीह की बात हो। कोई भी बात है, आपकी जमात अपने लोगों को मिसलीड करती है। बात असल में केस जो बिल्डअप हो रहा था वो ये हो रहा था, और ये साबित किया गया कि आपकी जमात किसी भी मसले में अपने लोगों से सच्चाई से काम नहीं लेती। राजा साहब, बात कर जी ली आपने? राजा जी साहब, जी बात कर ली जी जी आपने?
जी सर मैं देखिए हमारा तो जो कुछ है वो सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, alislam.org पे जाके देखें, सारा का सारा अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर अवेलेबल होने से क्या साबित होता है? जैसे जैसे ये कार्रवाई अवेलेबल होने से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि 40 साल से आप जो बात कर रहे थे उसका नहीं, हकीकत के साथ कोई मैं तल्लुक नहीं। राजा साहब आपको बताऊं, आपने वो कार्रवाई पढ़ी नहीं है। मैंने जी नहीं मैं पढ़ी। दावे से कहता हूं आपने वो कार्रवाई पढ़ी नहीं है। अच्छा आप जो ठीक है, बातें कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि आपने वो कार्रवाई नहीं पढ़ी। चलो डॉक्टर चलो आप साहब यहाँ आज पे मैं आपको दावत ये देता हूं कि डॉक्टर मुबशर उस कार्रवाई में मौजूद थे, सर मैं उनका आपको बयान ये करने, दावत देता हूँ मिर्जा ताहिर साहब मौजूद थे। हाँ जी, उनके फिर मैं माजरनामा भी आपको उन्हीं का ये लिखा दावत हुआ है। देता हूँ मिर्जा ताहिर साहब मौजूद माजरनामा थे। मिर्जा ताहिर अहमद इस साहब का तरह लिखा करते हुआ हैं ना काम, आप प्रोग्राम बना लें तो फिर सारी इधर कार्रवाई एक कर देते डिबेट हैं रख असेंबली लेते हैं की। इस पर। मैंने वो लाइव अपनी लाइव पे रोजाना शाया करता था हजूरे वाला। मुझे पता है शुरता साहब, मैंने वो सुना भी है आपसे। राजा साहब मैं जी कुछ क्या, हाँ जी 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 बोले देखिए भाट साहब आप, हाँ जी मैं आगे बोले आप। बात यह है कि आप को मैं कई दफ़ा दावत दे चुका हूं कि आप मुझसे उस पर तफसीली बात कर लें, जो कि आप अभी तक इनकार करते आ रहे हैं। अगर अब हमने कहेंगे ठीक है जी मैं तैयार हूं तो इल्म नहीं। राजा अताल मनान हमसे भागा है, डॉक्टर जकरिया हमसे भागा है, तलत मलक हमसे भागा है। आपके वो राज- एक थे वो 32nd वो जर्मन में जो जिन्होंने लिखा है वो हमसे भागे हैं। हम किस दिन भागे जी हैं आपसे? राजा साहब देखें, इस तरह की बात नहीं करते कि कोई भाग, मैंने कहा कि आप भागे हैं, मैं नहीं मैंने कहा मैं आप नहीं 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 मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो भागे हैं, अच्छा चलें ठीक है, वो और मुझे नहीं ऐसे नहीं भागे जुतियां छोड़कर भागे। देखिए मैं तो आपको जो बात कर रहा हूँ कि मैं तो देखिए किस दिन आपने, आप रखना चाहते हैं, बाद रमजान शरीफ के बाद रख लेते हैं एक दिन। हाँ जी हाँ बहुत मेहरबानी, रमजान शरीफ के बाद रखते हैं। जी दूसरी बात, आप बैरिस्टर हैं, आप वकील हैं, नहीं छोड़े इस आप बात को। मैं क्या हूँ, मैं अपनी बात नहीं करने आता इधर कि मैं क्या मैं हूँ। देखें बात तो करने देना, आप टोक रहे हैं बार बार, नहीं मुझे मुझे उम्मीद मुझे आपसे, छोड़े ना बीच में। ओहो लेकिन मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। आपने करना है मुझे आप। बात, मुझे आपसे मैं उम्मीद नहीं रखता कि इंसान एक आला तलीम याफ्ता किसी को बात ना करने दे। करें मैं बात, बात, आप करें। हाँ जी बात यह है कि मैंने सबको कहा है, मैंने आमन नदीर साहब को ही कहा कि ये जो कार्रवाई आपने छापी है ये हम किसी अच्छे मारूफ वकील के पास ले जाते हैं या किसी रिटायर्ड जज मेरे ताल्लुकात है उनके पास ले जाते हैं। इस कार्रवाई की कानूनी वैल्यू 0/0 है, 0/0। जहां पे नुक्ते नुक्ते, हर लाइन में नुक्ते हों, एक लफ्ज का इजाफा हो जाए, एक लफ्ज की कमी हो जाए, मफहूम मजमून बदल जाता है। इस कार्रवाई को तो आप बतौर सबूत कहीं पे पेश ही नहीं कर सकते। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ छापा भी तो क्या छापा कि जिसकी वैल्यू 0/0 है। चलो एक काम आप आप तैयार करें। है किसी वकील के पास मैं इस आपकी कार्रवाई को लेके बात जाने के लिए? नहीं खर्चा मैं दे दूंगा। वकील को छोड़े, वकील को छोड़े। आप ऐसा करें, आप अपनी जमात को कहें कि ऑफिशियली ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लें। देखिए कभी मैं नहीं तो करेगी आपको, इख्तियार, कभी भी नहीं जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। वो इसलिए कि वो कार्रवाई बिल्कुल है ही ठीक। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वालेकुम न्यूट्रल बंदे के पास लेके जा रहा हूँ, कह रहा हूँ बैरिस्टर खर्चा भी साहब मैं अगर दूंगा। आपने ऊपर कॉल किया है तो 0/0 है इसकी कानूनी वैल्यू। आप मैं अपनी आपको जमात को न्यूट्रल बोलें कि बंदे, मैं कह वो रहा हूँ ऑफिशियल आप ले लें मौक़िफ़, कोई वकील। वो ऑफिशियल मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना, ओहो बात खत्म यार हो आप जाएगी। छोड़े ना आप। नहीं देखें ऑफिशियल चले मौक़िफ़ ठीक है, आपने मैं भी भाट बात साहब करता हूँ। भाट साहब 40 साल से ना एक मिनट भाट साहब यूसुफ 40 साल से यूसुफ साहब एक मिनट मुझे दें प्लीज। भाट साहब सुने बात मेरी, एक सिंपल सी बात है। हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई ऑफिशियली तौर पर शाया की है। आप अपनी जमात को ये बोले कि वो ऑफिशियल मौक़िफ़ अपना पेश कर दे कि ये कार्रवाई नहीं पूरी शाया हुई, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। हाँ जी मैं ऑफिशियल मौक़िफ़ से बता देता हूँ। मिर्जा ताहिर साहब की 74 की नहीं कार्रवाई में
मेरी बात सुनो, मैं खलीफा वक्त जो मौजूद थे उनकी सर बात कर रहा हूँ, मौजूद है यूट्यूब उनकी पे। मौत से बाद ये कार्रवाई शाया हुई है। नहीं नहीं, ओह मेरी बात तो सुने ना। नहीं 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 नहीं, ओहो उनकी मेरी मौत बात के तो बाद सुने ये आप। कार्रवाई देखें, वो तो मिसलीड करते रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, एक फिर आप वक्त एक काट रहे हैं मुझे आदमी बात नहीं बात ये नहीं ना मैं आपकी बात सुन सकता मिर्जा ओ, ताहिर रजा भाभी। चले फिर आप करें आपस में। मैं राजा करता साहब हूँ मैं बात नहीं आपसे, चाहता बताता कि हूँ मेरी ना। बदमजगी हो आपके साथ, ठीक है? नहीं सर, आप नहीं नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, नहीं तो आप बिल्कुल मुझे, गलत बात। अभी मैंने सिर्फ कहा कि मिर्जा ताहिर नहीं का मिर्जा नाम भी लिया, ताहिर आपने साहब मुझे की काट बात आप दिया। नहीं कर सकते, वही तो मिसलीड करते रहे हैं आपकी ओहो, जमात को। बात तो करने दें, वही फिर तो आप गलत बात बात करने करते के रहे हैं बाद सारी। जब मैं रख दूं बात, फिर आप कहें जी मैंने मिसलीड किया है, आप मुझे रख बात लें। तो रखने दें मोहतरम। हाँ जी, बात रखने दें, जब बात रख लूं फिर आप रख ले कहें रख कि ले। मिसलीड, हाँ जी मिसलीड किया है, ठीक है? मिर्जा ताहिर साहब ने सवाल जवाब की महफिल में 1974 के बारे में ये कहा कि खतबे नबूवत पर बात कार्रवाई में, जो कि खुद मौजूद थे कार्रवाई में, सिरे से नहीं हुई। जब इन्होंने आयन बनाया तो बुनियादें बना दी कि खातमुन नबीय्यीन को मुनकर है। अब आपने खतबे नबूवत के जो एक दो सफ़े बीच में डाल भी दिए हैं, 3500 सफ़े में से सिर्फ 2 सफ़े खतबे नबूवत की बात अगर हुई भी, अगर आपकी बात भी मान ली जाए, उस पर आपने आईनी तब्दीली कर दी। ये भी नहीं बात किसी जज के पास ले जाए कि मैं यार आपको ऐसे आईनी नहीं नहीं तब्दीलियां होती हैं। जज को सारी छोड़े प्लानिंग थी, ना शुरू मिर्जा भी ताहिर साहब प्लानिंग। पर 1 मिनट बात कर लेते मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई राजा साहब, मेरी बात खत्म नहीं हुई, कर ले। बात खत्म नहीं हुई। पहले भी प्लानिंग थी कि हमने इनको गलत झूठा साबित करना है, हमने इनको क्लियर देना, जो भी सारा प्लान पहले था। उस वक्त का जो डॉक्टर होली अटार्नी स्पिरिट साहब को जनरल है, ऊपर लें वजीर प्लीज। कानून के बयान मौजूद हैं, वजीर तालीम के बयान ऊपर मौजूद हैं। लेना, ठीक है ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, इस कार्रवाई को आप किसी रिटायर्ड जज के सामने, जर्मनी आना तो मैं आपके साथ ले जाऊं तो मेरे ताल्लुकात हैं, आप किसी को ले जाए 0/0। और मिर्जा ताहिर साहब का अपना बयान इस कार्रवाई के बारे में कि खतबे नबूवत ऑफिशियल बयान है, खलीफा वक्त का ऑफिशियल बयान है, जो वफात पा चुकी है, कि खतबे नबूवत पर उन्होंने बात नहीं की जब आइन में तब्दीली बनाई। तो ये तो ऐसा ही है कि 10 आप एक डॉक्टर जो है वो 14 दिन आपका घुटना चेक करे और रिपोर्ट बना दे आपकी आंख जो है वो खराब है। इस ऐसे डॉक्टर को तो जेल हो जाएगी जर्मनी में। आपके ये पूरे पार्लियामेंट के मेंबर अगर यूरोप में हो तो इनको जेल हो जाए, आपको जेल के आपके मुस्तक है ये, जेल नहीं, होगी अब आप इनको। मुझे बात रखने दें, आप हाँ जी, मुझे करें भी एक करें बात करें। रखने दें प्लीज। देखें बात ये है, आपके बाद मुझे इजाजत दें। आपने एक बात की कि मिर्जा ताहिर साहब ने ये बात की। मिर्जा ताहिर साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर ये कार्रवाई सामने आ जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो अहमदी हो जाता। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था कि ये कार्रवाई सामने आ जाएगी एक दिन, ठीक है? वो मैंने आपसे मेरी बात की सारी बात की बुनियाद ही यही है कि आपकी जमात 35-40 साल झूठ से काम लेती रही और अपनी अवाम को मिसलीड करती रही, ठीक है? अब जो बात है, हमारी कार्रवाई ऑफिशियली सामने आ गई है। राजा आप अपनी जमात को ये बोल दें। राजा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट एक आदमी बात करे ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि किस लानत पाई है? ਇਹ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ कितने दोस्तों मैं हबीबुर रहमान साहब देखे। हबीबुर रहमान भाई इन्नल्लाह साबरीन। अहमदिया ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ हबीबुर नहीं रहमान नहीं साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रजील साहब, ऐसी कोई मनो बात दोस्तों नहीं हुई। तारिक साहब जेरा भी मैं म्यूट राजा करा साहब ने आखिरी हबीबुर रहमान भाई इन्नल्लाह साबरीन अच्छा उन्हीं करेंगे। अगर एक मिनट तारिक साहब कोई भी पॉइंट आ गया सर, उन्हीं बैठ करेंगे। कमेंट ना करे, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ प्लीज एक ਉੱਤੇ मिनट, गुफ्तगू हो रही है, एक जरा मिनट, ध्यान अब से डॉक्टर गुफ्तगू साहब सुनो, आए हैं, थल्ले कोई बंदा मैं बैठ अपना कमेंट ना माइक करे। म्यूट करने वाला हूँ। डॉक्टर साहब को मैं माइक देता हूँ, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर होली स्पिरिट साहब। लो जी तारिक साहब मैं बंद कर ये मैसेज, ठीक हो जज़ाकल्लाह जी। राजा साहब मुझे इजाजत साहब दें आपके बात बाद करने की। मेरी बारी है या ये डॉक्टर साहब? हाँ जी डॉक्टर साहब आप करें या मैं करता हूँ, देखें। हाँ जी, आपने अभी जिक्र किया एक बात का, और पहले भी जिक्र किया कि हुजूर ने कहा था कि सारे पाकिस्तान अहमदी हो जाएगा। देखिए मैं इसका विटनेस हूँ। ये खलीफतुल मसीह सालस के सामने एक साहब ने उठ के कहा कि नवाब साहब ने, जो चेयरमैन थे उस वक्त, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने फरूक अली साहब थे जी हाँ जी साहिबजादा फ़ारूक अली साहब, उन्होंने मुल्तान बार काउंसिल की एक मीटिंग में ये कहा है, उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ये कार्रवाई पब्लिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम पब्लिश कर देते तो आधा पाकिस्तान मुसलमान हो जाता। ये बात उन्होंने खलीफतुल मसीह सालस के सामने की। तो खलीफा सालस ने उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नवाब ये क्या नाम था इनका,
خان صاحب جو تھے انہیں جا کے کہیں کہ آدھا نہیں پورا پاکستان مسلمان ہو جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک وفد بھیجا نواب صاحب کی طرف کہ ان سے تصدیق کرائے. وہ جا کے ان کو ملا اور انہوں نے انکار کیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ تھی ساری بات. یہ خلیفہ رابع کی بات نہیں ہے, خلیفہ ثالث کی بات ہے. نہیں یہ اب خلاف میری بات پوری ہونے دیں, میری بات پوری ہونے دیں. میں نے کہا ڈاکٹر کہ ہولی اسپرٹ صاحب جواب دیں گے آپ کی بات پر. السلام علیکم. ابھی بات ہماری ڈاکٹر صاحب نے پوری کرنی ہے, اس کے بعد میں نے بات کرنی, پھر جو مرضی کرے. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ایک منٹ بٹ صاحب, ذرا وہ جو پہلے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نا, آپ کے جو دوست ہیں, تو ان کو کر لینے دیں, پھر باری باری کرتے ہیں نا, پھر سارے اس طرح اچھا نہیں. تو میرا خیال ہے اگر ان کی بات مکمل ہوگی تو پھر میں ذرا ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ گفتگو کریں. اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث اب کج بیسی کی طرف چلی گئی ہے. آپ کو بٹ صاحب نے دعوت دی ہے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ سب لوگ آپ سے بھاگ گئے ہیں. بٹ صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ ان سے 1-on-1 ٹائم فکس کر لیں, ہم صرف سنیں گے وہاں پہ. ہاں جی, یہی بہتر ہے. ہاں جی, اب اس کے بعد مزید نہ کریں جب تک ہماری اس بات کے نہ ہو بعد جائے. اب میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے, میں بھی جزاکم نہیں اللہ. بولوں گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہولی اسپرٹ اچھا, اس کو سیٹل کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. السلام ڈاکٹر ہولی علیکم. اسپرٹ میں صاحب آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں, یہ سنیں آپ. اتنے مضبوط دلائل, اتنے قوی دلائل, اور جو عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی, ان کے بعد یہ نتیجہ تم نکال کیسے سکتے ہو کہ جماعت احمدیہ راستے پر نہیں؟ چنانچہ اس کی پیشبندی یہ کر لی گئی کہ جماعت کو قانوناً حکماً مجبور کیا گیا کہ جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کا کوئی نوٹ, کوئی ریکارڈنگ وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دینا. اس کارروائی کا نتیجہ کیا تھا وہ اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر سے ایک موقع پر سوال ہوا کہ آپ اس تحریر کو, اس کارروائی کو شائع کیوں نہیں کرواتے جب اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ ساری نیشنل اسمبلی نے آپ کے بیان کے مطابق متفقہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جماعت احمدیہ غلط ہے اپنے عقائد کے لحاظ سے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں, تو پھر شائع کریں اور ان کا جھوٹ دنیا پر ظاہر کریں. تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ شائع کریں, شکر کرو کہ ہم شائع نہیں کرتے. اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں آدھا تو ان کی کثر نفسی تھی. اگر حقیقتاً پاکستان کے شریف عوام تک جماعت احمدیہ کا موقف پہنچ جائے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ سارا پاکستان احمدی نہ ہو جائے. ہاں جی, ہو گیا سارا پاکستان احمدی. ہاں جی, آپ سارا سن لیں جو انہوں نے کہا ہے نا. ہاں جی, اسٹیریل صاحب, میں ان کو راجہ صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ کارروائی جو ہوئی ہے وہ شائع کی جائے, نہ کہ نقطے ڈال کے اور آپس میں بیچ میں باتیں ڈال کے جس کی ویلیو 0 ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی کارروائی شائع کرو جس کی ویلیو 0 ہو. آپ کسی جج کے پاس نہیں جا رہے, کسی معروف وکیل کے پاس نہیں جا رہے, خرچہ میں دیتا ہوں. اگر آپ میں یہ اعتماد ہے کہ ہم نے درست کام کیا ہے, کوئی جج اس کو دیکھے کہ 2 صفحے ختم نبوت پر اور آئین میں تبدیلی کیا خاتم النبیین. کوئی بندہ یعنی کہ خدا کا خوف کھاتا ہے کہ جج آپ کو کہے گا اچھا یہ پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے, دنیا کے اور کسی سے میں نہیں ہو سکتا. کیا آپ نے آئینی تبدیلی کر دی 2 صفحوں کے اوپر؟ مجھے ایک سوال کرنا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی اسمبلی کی کارروائی عدالت کے حکم کے بعد پوری اس کو چھپا سکتی ہے یا اس کو میں ایڈیٹنگ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب دیتے ہیں. میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا. اگر یہی بات جو آپ نے اس براڈ پر کہی ہے آپ پاکستان میں کھڑے ہو کر کہہ دیں اور پھر 14 سال سے پہلے جیل سے واپس آ جائیں تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. اور ڈاکٹر صاحب ایک منٹ صاحب ان کی وجہ بھی تو وہ بتانے لگے ہیں. ایک منٹ بات پوری ہونے دیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کا بیان حکومت پاکستان پر یہ الزام ہے کہ وہ ایک جھوٹی حکومت ہے اور جس نے ایک جھوٹی کارروائی شائع کی ہے,
इसकी सजा 14 साल कैद बामुशक्कत है पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक। आप दूसरी बात, 26 मरतबा आपने इसको पिटीशन किया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बाज लोगों ने जाती तौर पर किया और आपने जमाती तौर पर बहुत मरतबा इसको चैलेंज किया है। आपने जब इसको चैलेंज किया तो आप किसी एक चैलेंज में मुझे दिखाएं कि आपकी जमात ने यह कहा हो कि यह कार्रवाई गलत है। और जहालत की इतनी ऊंचाई पर आप बैठे हैं, जहां पर डॉट 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 लगा है वो जगह है जहां पर मिर्जा नासिर ने या आपकी जमात के किसी आदमी ने यहया मुख्तियार की बात को काटा हो। मैंने इस कार्रवाई को 5 मरतबा से ज्यादा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा है। मैं कहता हूं आप इस कार्रवाई को लेकर आलमी अदालत में चले जाओ। अगर आपको दुनिया भर में बैन ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। चलो हो गई गल कि जे और कुछ हाँ जी, हो गई। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ तो ਉਹ तकरीर करते हैं, ਉਹਦਾ फिर मजमून रहता ही नहीं। भाई ये कार्रवाई उन्होंने जो कहा है कि शरीफ उन नफ्स लोगों के पास पहुंचे, आप पाकिस्तान के निज़ाम को इतना साफ और शफाफ समझते हैं। वो बात आप वो कर रहे हैं कि घसोन नेड़े के खुदा कि तुसी इन्हू झूठिया कहो तो तुहानू 14 साल कैद हो जाएगी। कोई गल खुदा दा खौफ करो। कल एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो फैसला एक आम छोटी अदालत RM की अदालत जड़ा होना चाहिए सी, MD नू इंसाफ लैण वास्ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पाया। आप किस निज़ाम की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? इस निज़ाम की जिसके मतलब हसन निसार साहब कहते हैं कि इसको तेजाब के साथ 10 दफ़ा धो फिर भी ये साफ नहीं निकलना। तुसी इस निज़ाम ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਡ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੋਅਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਸਹੀਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ 1953 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੇ। ਯਾਦ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ और ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये वधनी है, वधन वास्ते जड़ी ना कायम हुई है। जिन्ने मर्जी PhD आ जान, जो मर्जी स्कॉलर आ जान, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਹਤ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ, ਗਾਲਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਤੋੜਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਜਲਾਣਾ,
ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਾਹਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲਤ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਤ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਦੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਰਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛਾਪੋ। ਚਲੋ ਸਟੇਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ, मैं एक और वीडियो सुनाना चाहता हूँ, ये सुन लें। सर गल है कि कार्रवाई उसी दिन गलत होगी। तारिक साहब, मैं एक जुमले में जवाब दूंगा, उसके बाद आप दीजिएगा अपना। तारिक साहब आप अपना जवाब दीजिएगा। आपको भरपूर टाइम मिला है, पहले भी भाट साहब को भी मिला है। भाट साहब जो बार बार कहते हैं जी खर्चा मैं पल्ले दे दांगा, भाट साहब पता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਚੇ ਨਾ WhatsApp ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ की वीडियो चलने देना। डॉक्टर साहब की वीडियो जी। डॉक्टर साहब, बहादुर पहलवान जिसे कामिल यकीन हो कि मुझे सारी दुनिया भी सवाल करे और जरा पता करे, मुझे नाकाम नहीं कर सकते, वही इस पेशकश को कबूल करे। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने आवाज कम है बहुत का नमूना दिखाया है। आपने कहा जितने चाहो सवाल, और 14 दिन तक मुसलसल अपने आप को पेश किया, जो चाहो जिस किस्म के सवाल करो ना। और अगर उन सवालात की बिना पर उनकी नाकामी के जवाब की नाकामी के नतीजे में उन्होंने कोई फैसला किया होता तो मैं अभी साबित कर देता हूं कि ये फैसला हो ही नहीं सकता था जो अब किया गया। वजह यह है कि अगर आपको तौफीक मिले पढ़ने की, अगर वो कार्रवाई छपे, एक मौलवियों ने शाया किया कत्ल दमन के साथ, वो बिल्कुल झूठी कार्रवाई है। तो असल कागजात हैं, अगर उनका मुतालिया का मौका मिले या असेंबली के जो मेंबर हैं उनसे वो जिंदा हैं उनसे पूछें। इसलिए साबित हुआ कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो मजबूत था, मुदल्लल था, कवी था। और आखिरी बात जो इस जगह मैं आपको बतानी चाहता हूँ, इसके एक गवाह जिंदा भी, एक नहीं कई होंगे, मगर एक गवाह खुसूसियत से जिंदा मौजूद है। मेरा ख्याल यूसुफ खटर जिंदा है कि नहीं? बहुत हो गए इंसान, लेकिन साहबजादा साहब तो जिंदा है ना, मुल्तान वाले हैं, फारूक अली साहब, वो भी जानते हैं और बहुत से जानते हैं। माने ना माने उनकी मर्जी है। जब ये मुनाजरा या जरा कदा अपने इख्तिताम को पहुंची तो मेरे पास खुद मुबारकबाद देने के लिए MNAs कसरत से आए, क्योंकि मैं सबको अक्सर को जानता हूँ, और कहा मुबारक हो। हमारा कंसेंसस ये है ओपिनियन का कि मौलवियों के पल्ले कुछ भी नहीं चढ़ा, आप जीत गए। हाँ जी, बात सिर्फ एक छोटा सा सवाल है इस पर कि अगर मौलवियों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था तो पूरी नेशनल असेंबली में जो दो आपके MNA, 2 को तो मैं जानता हूं जिन्होंने कादियानियत छोड़ दी 10वें दिन, और उसके बाद एक ने भी एब्सटेन नहीं किया, सब ने वोट दिया,
और आपके खिलाफ वोट दिया और असेंबली का चपड़ासी तक कादियानी नहीं हुआ। भाई साहब इसका जवाब दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि ये असम्बली की कार्रवाई उस दिन झूठी साबित हो गई थी, उस दिन झूठी साबित हो गई थी जिस दिन डॉक्टर मुबशर हसन ने ये बयान दिया था कि ये टोटल कार्रवाई नुमाइशी थी, फैसला पहले हो चुका था। या बख्तियार एक बेवकूफ़ आदमी था, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। मैं नऊज़ बिल्लाह ऐसी बात की जरूरत नहीं करता। तो जब फैसले पहले हो चुके हों और बैरूनी आकाओं के इमा पर हुए हों तो इस तरह के फैसले की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती। ये बात है, मौलवियों के पल्ले क्या था और क्या नहीं। और दुनियादारी के लिए बहुत से मुसलमान आज जो हैं वो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो उसकी वजह से नऊज़ बिल्लाह इस्लाम जो है वो गलत साबित होता है। क्या बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं? मिर्जा ताहिर डॉक्टर अहमद साहब साहब उस टाइम इनके कोई 10 बात जो बंदे है भी वो मुसलमान हो गए थे ना, आपको शायद इल्म है वो कहाँ का वाकया है कि इनके 10 बंदे भी मुसलमान हो गए थे। किनके? आपके डॉक्टर साहब आप नहीं बोला था ना? नहीं, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर जो 2 असम्बली के मेंबर थे वो मुसलमान हो गए थे, जो मैंने सुना। जो जमात के 2 मेंबर जमात थे, के 2 फर्द वो थे। नेशनल अच्छा, दो- असेंबली के दो। मेंबर थे। दुनियादारी के लिए लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब नऊज़ बिल्लाह इस्लाम गलत हो गया। आप क्या बात कर रहे और हैं? उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया स्टेरियर का। देते रहे तो कोई बात नहीं। दुनिया मैं का 1 मिनट चाहूंगा अगर मुझे मिल जाए। जी बोले एक सुल्तान मैं भाई, आपको कर भी लिए काफी बात इससे आप पहले अभी- बोला है। अभी ये साहब ने कहा कि जो याह्या बख्तियार साहब थे उनके बारे में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। मैंने ये कार्रवाई पढ़ी है और लाइव पढ़वाता था, सुनवाता था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट साहब, बात सुने जरा, म्यूट रख के बात सुने, फिर आपको समझ में आएगी। जब उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं, जैसे उन्होंने एक सवाल किया था, आगे मिर्जा नासिर साहब का जवाब मैं आपको आपके सामने यहाँ 54 लोग सुन रहे हैं, तो देखते हैं कि दोनों में से ज़हीन कौन था। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक मुसलमान हूं, तो वो ये साबित करना चाह रहे थे 20 जो आर्टिकल यूएनओ का जो कानून है पूरी दुनिया में, आर्टिकल 20 कि मेरा वो फंडामेंटल राइट है कि एक मुसलमान या कोई भी मजहब का मानने वाला वो अपनी मजहब की यानी कि कोई भी तबलीग कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुझे बताइए कि कनाडा या अमेरिका के अंदर एक मुसलमान जाता है, वो अपनी दूसरी शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये लंबी एक बहस है। लेकिन आगे मिर्जा साहब ने आगे जवाब क्या दिया, ये जरा सुनिए, कितनी माशाल्लाह अक्लमंदी आप कह रहे हैं। मिर्जा नासिर साहब का जवाब ये है कि भाई आप उस मुल्क में जाए ही ना। ये जवाब है जी। अगर आप नहीं कहते तो मैं अभी खोल देता हूँ, और आर्टिकल 20 को पहले पढ़ें। और आप समझते हैं कि मिर्जा नासिर साहब ने ऐसे जवाब दिए हैं कि पूरी सबके पर्चे उखाड़ दिए। ये सुनने वाले सुन रहे हैं कि जी उस मुल्क में ही ना जाएं आप। तो ये जवाब होता है, आप बताएं, एक अक्लमंद इंसान का ये जवाब होता है। मैंने अपनी तरफ से आप याह्या कह रहे हैं कि बख्तियार साहब को कुछ नहीं याह्या कहा। बख्तियार साहब थे अटॉर्नी जनरल, वो शोता बेवकूफ खत्म थे। नबूवत और साहब नासिर साहब खत्म ऐसे जवाब देके पूरी दुनिया के बेहतरीन फतीन और ज़हीन इंसान समझ हो रहे हैं। यही आपका कहने का मतलब? खत्म नबूवत शुरता खत्म नबूवत साहब, मैंने डायरेक्ट याह्या बख्तियार साहब को कुछ नहीं कहा। मैंने डॉक्टर मुबशर हसन का रेफरेंस दिया है, जो उस वक़्त वज़ीर ख़जाना थे। उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और उन्होंने ऐसे यूट्यूबर को नहीं दिया हुआ, उन्होंने नेशनल टीवी पर दिया हुआ है। ये पुराने दौर की बात है, आज कोई निकाले जब प्रोसीडिंग आई। मुझे कहें, मैं कैमरा ऑन करके आपको अभी पढ़वाता हूँ मिर्जा नासिर साहब का जवाब क्या है। तो उन्होंने उस वक्त जो जवाब दिया वो तो एक ही जवाब लगा कि वो उस मुल्क ही ना जाओ। और भी सवालात किए उन्होंने। नहीं, आपको 2 शादियां का शौक है यूरोप में, तो आप भाई यहाँ पे कानून पास करवा लें कि हम 2 कर सकते हैं, या हम मुसलमान हैं, हमारे पर्सनल लॉ है। तारिक साहब, फ्रांस में निकाब क्यों नहीं करने देते? एक मिनट, जब कानून यहाँ का कानून यहाँ पे मजहब की इंटरफेरेंस कर रहा है कि भाई पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का कानून है, कानून को जब आप फॉलो नहीं करते तो यहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। यही साबित करवाना चाह रहे थे वो कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आप में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो इसको एक्सेप्ट करें। ये मतलब है।
समझ आई आपको? ਤੁਸੀਂ आपको नहीं है ਤੁਸੀਂ समझ? ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰੇ ਘੁਟਨਾ ਫੂਟੇ ਆਂਖ ਵੀ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, नहीं ਉਸ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਾ तारक ਜਾਓ। साहब मैं समझाना नहीं ਨਹੀਂ शायद ਇਹ तुसी ਗੱਲ तारक ਜਿਹੜੀ साहब ਨਾ नहीं ਅਕਲ तारक ਤੋਂ साहब ਬਾਹਰ मैं ਹੈਗੀ समझ ਹੈ। गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ एक ਕੀਤੀ ਕਿ मिनट ਉਸ नहीं ਮੁਲਕ ਦਾ नहीं ਕਾਨੂੰਨ सर एक मिनट एक मिनट यार एक सबसे मिनट पहले आपने बात की, राजा भाई एक मिनट, सिर्फ आपने बात ये की, सिर्फ एक मिनट राजा साहब, बड़े बड़े यानी कि मैं मादर के साथ आपने ये बात की कि जनरल या साहब जो हैं वो एक बेवकूफ इंसान है। मैं तो नहीं कहता मैंने नहीं की, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो मैंने भी ये कोई बात नहीं की, मैंने नहीं कहा उन्हें। सर किसी साहब ने की है सर, तो मैं ये वो आपके आप ही वही के बता रहा वजीर हूँ कि खजाना डॉक्टर मुबशर हसन है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है इंटरव्यू। सर जी बात तो सुने ना सर जी, ये छोड़िए इन चीजों को। मैं आपको, हम जो किसी ने कह दिया तो क्या मतलब, मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने वेरीफाई कर लिया कि भाई दोनों में समझदार कौन है। सर मैंने तो आपके आपके सामने रख दिया। अगर आप कहीं रेफरेंस में अभी खोलता हूँ आपके सामने, मुझे बड़ा कर दे, मैं माइक सर मैंने ये रेफरेंस आपके अलामा साहब को भी छोड़िए जी भेजा जो छोड़िए जी व्हाट्सोएवर। कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अगर कह दे कि जी वहां पे जनरल याया जो बख्तियार साहब थे वो बेवकूफ थे, मैंने तो नहीं मानना, मैंने तो वेरीफाई करनी है। मैंने वेरीफाई करके देखा कि मिर्जा नासिर साहब आए या शाएं कर रहे थे। उनको तो इतना पता नहीं था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दादा का नाम क्या है, उनके ये भी नहीं पता था। पहला सवाल था ये, उनको इतना भी नहीं पता। आपको तो शायद वो पता होगा, मिर्जा नासिर साहब को नहीं। हाँ जी मैं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ जवाब ਨਾ ਆਪਣੀ देता ਹੱਦ हूँ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕਾ ਮੁਝੇ- ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ वो ਸੁਣੋ, मुझे ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਨਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं लाइन नहीं ਤੁਸੀਂ क्रॉस कर रहा ਉੱਥੇ हूँ, मैं ਤੱਕ आपसे ਰਹੋ ये ਨਾ, पूछ रहा ਤੁਸੀਂ हूँ कि ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ये ਇਹ ਨਹੀਂ पहला ਪता। सवाल है उनका। वो क्या भाई ये है? पहला सवाल है। स्टेरियल साहब वो मैं कह जवाब रहे थे देता एक हूँ दिन मैं दीजिए मुझे। स्टेरियल साहब मैं जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ आप कह रहे हैं कि वो बड़े फतीन थे, बहुत समझदार थे। हाँ जी मैं जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ जी आप आए आए आए, मैं अभी, मुझे भी एक मिनट दे, मैं जोर वो खोल लेता हूँ, जो कहते हैं प्रोसीडिंग खोल लेता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ जी हाँ जी चले। आपने शायद सुना नहीं कि मैं ये कह चुका हूं कि इस प्रोसीडिंग की कानूनी वैल्यू 0/0 है। आपकी जो क्रीम है, जो अपना कानूनदान है, जो सियासतदान है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने कार्रवाई निकाली भी तो निकाली क्या 0/0 वैल्यू। ये उनके दिमाग का निचोड़ है जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया है। आप किसी अदालत में चले जाएं, यूरोप में किसी वकील के पास चले जाएं, इसकी वैल्यू 0/0 है। तो इसको मानतीन मिर्जा ताह साहब खुद कह चुके हैं, उस वक्त जो छपी थी सारी झूठी थी। तो ये कार्रवाई की मैं तो इसको बुनियाद बनाता नहीं अपने डिस्कशन के लिए। राजा साहब के साथ मेरी रमजान के बाद बात है अपना भट्ट साहब ये 0/0 जो है ना, कार्रवाई के बाद 0/0 जो है ना वो जमात हो गई थी। और जिस चीज को आप कह रहे हैं ना कि जी आप इसको किसी डॉक्टर के पास, किसी जज के पास, किसी मैकेनिक के पास ले जाके इसको चेक करवाओ, वो हमने नहीं ले जाना भाई, आपने लेके जाना है। जी वो आपने लेके जाना है ना। आप मुझे किस फॉर्म में लेके गए हैं? आपसे सवाल किया पहले, आपके पास जवाब नहीं। आप हमें कह रहे हैं कि जिस जो कार्रवाई की जो फैसला जो आया है उसके ऊपर जो हम ही खुद ही चले जाएं किसी और जज के पास, जी अब ये बताएं हमने सही फैसला किया या नहीं किया। तो आपने जाना था, आपका काम था। आप बताएं यूसुफ साहब आप बात जाके हाँ जी आप बात नहीं समझे। मैंने ये नहीं कहा कि किसी अदालत जो लगी हो उसके जज के पास, मैंने कहा जो रिटायर्ड जज है, कोई मारूफ वकील है, उसके पास जाके दिखा दें भाई इसकी वैल्यू क्या है। 0/0 है। हाँ हमारी 0/0 वैल्यू हो गई है। आपने आपकी कार्रवाई के बाद अजीम साहब एक मिनट, दुनिया देख रही है। हाँ जी अजीम साहब एक मिनट। डॉक्टर होली स्पिरिट साहब ने बुनियादी सवाल आपसे कहा था कि आपने जितनी भी पिटिशंस की हुई हैं उनमें से कौन सी पिटिशन में आपकी जमात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस कार्रवाई की वैल्यू 0/0 है। ये अब अगर आपकी जमात ऑफिशियल लेवल पर ये जरूरत नहीं करती ये पोजीशन लेने की, तो आप इधर टिकटॉक पर बैठकर नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है कि ये कार्रवाई जो है ये बिल्कुल सही पब्लिश हुई है। राज साहब आप
हाँ जी और राजा साहब, आप वकील हैं और कानूनी बात कर रहे हैं, आपको मैंने दावत दी हुई ना, मैं एक मिनट आ जाता हूँ, किसी मरूफ वकील के पास चले एक जाता मिनट जी साहब, एक हूँ। मिनट रुक जाएं, हाँ अभी जी, आपके सामने हाँ रख रहा हूँ ये हाँ। और सारा यार इसकी मुकदमा। 0/0 है, मैं इसको नहीं मानता, ना आप रखो रखो ना चले रखो, ठीक है। चले, हाँ जी। देखे तो सही मिर्जा नासिर साहब ने जवाब और यार क्या नहीं कहा ना उन्होंने, ये आप लोग कहते हो उन्होंने नहीं मजा कहा आ ऐसे, जाए आपके सामने, अभी मजा आ जाए आपके तो सामने मैं कि कहता हूँ भाई नहीं कहा उन्होंने ना, मैं आपके बारे में चीजें लिख दूं, कहो जी आपने ये कहा है, उन्होंने नहीं चले, कहा। होल्ड ऑन, हाँ आप होल्ड एक ऑन, मिनट, और यार नहीं उन्होंने कहा ना, क्या नहीं चले कहा? भाई साहब, आप उन्होंने अब खुद निकाल ही लिया का गाने 1 लगा मिनट के को कहते हो सुनते जी लेना, आपके हम पास आपकी अपना तरफ हौसला ही कर नहीं रहे है, हैं 1 बातें, मिनट हम सुनने उसको का। एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, इसलिए आप मेरे सामने ये पेश ना करें। बड़ी अजीम नफरत को से ये एक मैं बात रिकॉर्ड कहना चाहता करके हूँ, मुझे अगर मैं रिकॉर्ड करके मस्जिद ये जाना है कंप्लेन कर तो दूं मैं ना फिर तो ये इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे आप इस बात के ऊपर, ही जो आप कार्रवाई के खिलाफ मिस्टर बातें कर रहे हैं याहिया अजीम भट्ट बिख्तियार साहब। सर, हाँ जी, if I follow the अपना Quran खलीफा strictly साहब, अगर आपके in पार्लियामेंट any part of the मेंबर world, you यूरोप think में I हो will तो not सारे commit जेल any में होंगे, offense? तमाम सर पार्लियामेंट बात तो मेंबर सुनिए, आपके जेल में होंगे कि 14 दिन if I, आप गोदा आपकी घुटना चीखें चेक अब करते इतनी रहे, होगी कि आपने ये बातें रिपोर्ट सुननी बना दी, नहीं है। आंखें फेल हैं। If I follow the Quran strictly, अगर मैं सख्ती से इस्लाम को यानी कि उसको फॉलो करूं या उसकी पैरवी करूं इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारी किसी भी दुनिया में, यू थिंक आई विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस, कि मैं कोई बुराई तो नहीं करूंगा या कोई क्रिमिनल? मिर्जा नासिर साहब, आई थिंक आई शुड नॉट, कि यू शुड नॉट, कि आप नहीं करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। याहिया साहब कहते हैं सपोजिंग आई वांट टू मैरी 2-3 वाइफ्स इन अमेरिका, फिर वो आगे बता रहे हैं कि वो सेम सिस्टम, वहां बात काटी है या जो जैसे भी होली स्पिरिट ने, हाँ यही बात है, जवाब भी काटा हुआ है, ये जवाब तो नहीं मिर्जा, ये याहिया बिख्तियार साहब बोल रहे हैं वो नीचे दे ना, नीचे देखे, नीचे जवाब जो है वो भी काटा हुआ है, सिर्फ एक लफ्ज रहने दिया गया है, इस तरह सर आप नासिर साहब ने नो हाँ आगे काटा हुआ कि है। नहीं, कि हाँ ऐसा जी, नहीं होगा, हाँ ठीक है, 0/0 है इसकी वैल्यू, इसलिए मेरे चलिए सामने पेश चलिए, ना करें। हाँ जी, अच्छा अच्छा बात तो सुने, ओ आई एम हुक्मैन जस्ट नूर आस्किंग, साहब, ये नहीं काटा हुआ ये नहीं काटा हुआ। ओ एक भाई मिनट काटा हुआ साहब है। खुदा के साहब लिए बात ऐसा नहीं हो सकता, कोई रियासत ऐसा नहीं कर सकती। और पाकिस्तान में आइन 2 सफ़ों पे कार्रवाई जो dot छुट्टी is की कार्रवाई को ले representing ले, the खत्म pause. नूर की बात 2 सफ़े पे हुई है। राजा साहब, dot is representing the pause. The बिल्कुल dot is बिल्कुल पोज representing the होता है pause. सर बीच एक में। मिनट, सर एक मिनट, अजीम आई एम भाई जस्ट आस्किंग यू, इनको हाँ भी जी, विल हाँ दे बात जी, अरेस्ट करने मी दे। और नॉट, अजीम भाई एक विल मिनट दे बात तो सुनिए। अरेस्ट मी और नॉट, प्लीज यार हाँ, भाई, ये कालू आप साहब कर एक ले मिनट, शुरता साहब, आप अपना मौकफ बयान करें, फिर हमें बयान करने दें। करें, क्या मौकफ है आपका? अच्छा अच्छा जी जी, जी आए जी करें, आए जी, फिर आपने हमारी अब बात में नहीं बोलना। करें आप अपना चले मौकफ। ठीक है जी, ठीक है जी। सबसे पहले कि ये है कि सपोजिंग आई वांट मैरी 2-3 वाइफ्स इन अमेरिका, तो मिर्जा नासिर साहब कहते हैं नो आई शुड, कि जी ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, पहले उन्होंने कह दिया ऊपर शुड नॉट। याहिया साहब कहते हैं आई एम जस्ट आस्किंग यू विल दे अरेस्ट मी और नॉट, कि वो जो उनका कानून है वो मुझे पकड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे ये बड़ी लंबी पीछे से है, मैं लेकिन लुपे लुपा बता देता हूँ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं किसी जगह मुल्क में जाऊं और वहां पे 2 शादियां करना ममनू हो और मैं कर लूं, तो क्या उस गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी कि नहीं? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मिर्जा नासिर साहब, इट इज नॉट कंपल्सरी। अब ये कंपल्सरी का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं, तो वो यहाँ पे याहिया बिख्तियार साहब कह रहे हैं टू हैव मेनी वाइफ्स, कि ये जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा शादी नहीं करनी चाहिए या नहीं। तो फिर जवाब दे रहे हैं मिर्जा नासिर साहब, इट इज नॉट कंपल्सरी। ये कोई आप अक्ल के करीब कोई इंसान समझ सकते हैं कि ये जवाब होता है कि जी ये कंपल्सरी है या नहीं है? इस्लाम में 4 शादियां मौजूद हैं, और आप देख लें कि मेरा यहाँ पे आपके साथ ये सिर्फ जीरा इस वजह पे है कि मिर्जा नासिर को आप फतीन और ज़हीन इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये जवाबात होते हैं, इस तरीके से जवाब दिया जाता है? आगे सुनते हैं। तो मुख्तसर यहाँ पे बात अच्छा मुख्तसर के हमें भी पता चले, चल। मैं यार मुख्तसर कर खामोश देता रहो हूँ, भाई। चले। ओए हेलो भाई, अपना तेनू माइक पूछिया म्यूट रखो। मैं, तेनू ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਗ ਸੱਟੋ ਥੱਲੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਗਟਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ? मैंने उतार दिया इसको, ये अगर टैं टैं करेगा तो ये आप लोगों की हालत है, ये हालत है। अच्छा जी, इतने बात डरते हैं आप लोग, इतने डरते ਓ हैं। ਭਾਈ यार, ਓਏ ਹੈਲੋ, तीन ਉਹ लोग ਹਾਲत यहाँ मौजूद ਉਹ हैं। ਹਾलत ਵੱਡੀ चल ਤੂੰ तू भी ਹਾलत आ थल्ले, ਗਿਆ। एडा तू माचो मैन, चुप ਐਡਾ करके ਮੂੰਹ सुनने ਨਾ ते गल ਮੱਥਾ ਜਿਹਨੂੰ सुननी ਪੜ है, ਲਥਾ। नहीं ते बह थल्ले।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ਰਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਛਾਤੀਆਂ आप ਜਿਹੜੀ कंटिन्यू ਰੀਲੋਡ रखें। ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਹੋ। नहीं नहीं यार, ਛੋਟਾ ਭਾਈ डॉक्टर साहब ਫੜੋ से ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आराम ਜ਼ਰਾ। से बात करें, अगर करनी है तो। नहीं जी, डॉक्टर साहब आए हैं ऊपर, और यूसुफ भाई। जी आराम से ही बात कर रहे हैं अली भाई, लेकिन जो यहाँ पर आके ज़्यादा होशियारी करेगा ना, उसे हमें पता है कि हमने उसे किधर भेजना है, फ़ौरन दमिश्क भेज देंगे उसे हम। जी शुरता भाई जारी रखें आप। जी सर, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे इट इज नॉट कंपल्सरी। अबे यार, कंपल्सरी का मतलब क्या? अब ये कहाँ पे या इनका जवाब कंप्लीट है? फिर आगे या साहब ने ट्राई किया कि मैं आपको एक अदर एग्जांपल देता ट्राई करता हूँ, और इतनी एग्जांपल देने की कोशिश की, बट आई विल गिव यू अनदर इंस्टेंस। सर, यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन, आप बड़े पढ़े लिखे हैं। यू नो देयर इज अ चर्च कॉल मोरमोन चर्च। मोरमोन इनकी एक सेक्ट है जी, वो उसी तरीके से करते हैं। वो कहते हैं हाँ जी, ये मोरमोन जो है जी, ये क्रिश्चियन, वो उनके अंदर एक सेक्ट है जो यानी कि एक से ज्यादा शादी करने पर यकीन रखता है। अब वो कह रहे हैं कि मुसलमान भी नहीं। अब जरा क्रिश्चियन की बात हो रही है, ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। मिर्जा नासिर साहब कहते हैं यस आई नो, मैं उनके बारे जानता हूँ। या बिख्तियार साहब कहते हैं अंडर देयर रिलीजन, देयर क्रिश्चियन और देयर सेक्ट वगैरह वगैरह, तो दे कैन हैव नॉट। कहते हैं कि जी वो ये कह रहे हैं कि उनसे कि वो अपनी वाइफ ज्यादा रख सकते हैं कि नहीं, दे कैन हैव नॉट, कि वो नहीं रख सकते। या साहब कहते हैं इट इज नॉट ओनली परमिसेबल, कि ये सिर्फ इजाजत है, उनको इजाजत नहीं है। मिर्जा नासिर साहब कहते हैं अच्छा। या साहब कहते हैं बट ऑब्लिगेटरी फॉर ए पर्सन, कि ये उनके लिए जरूरी है, उनके लिए लाजमी है, इफ द सर्कमस्टेंसेस परमिट, कि अगर वो हालात इजाजत दें, टू प्रैक्टिस पोलीगैमी। पोलीगैमी ये देख लें, मुख्तसर लिखा, पोलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी रखना। ये एक बहुत लंबी बात हुई है, लेकिन हमारे यहाँ तो यानी कि एक से ज्यादा है। नो, या विद्यार्थी साहब कहते हैं दिस इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, विल दे अलाउ हिम इन अमेरिका टू मैरी। अब ये एक क्रिश्चियन की बात हो रही है, एक मुस्लिम की बात नहीं हो रही। मोरमन मैंने आपको बता दिया। तो वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जो मजहबी आजादी के मुताबिक क्या कोई अमेरिका में उस मोरमन को, वो क्रिश्चियन भी है लेकिन वो सेक्ट है उनका, वो शादी कर सकता है? विल दे अलाउ हिम, कि क्या वो इजाजत देंगे उसको शादी करने के लिए? मिर्जा नासिर साहब का जवाब कहते हैं इफ दे डोंट अलाउज इट, दे शुडंट डू इट और लीव अमेरिका। ये जवाब है जी इनका। अगर वो नहीं, साफ यहाँ पे साफ भी कह दिया है कि अगर वो इजाजत ना दें, कौन? गवर्नमेंट, दे शुड नॉट डू इट, कि उसको नहीं चाहिए वो शादी करे, और लीव द अमेरिका। तो आपको भी अगर पाकिस्तान का कानून नहीं पसंद है तो यू शुड गो नो, गेट अनदर कंट्री सिटीजनशिप, एंड दैट व्हाट यू गाइस आर डूइंग। तो यही और भी बहुत लंबी वजाहत है, उम्मीद है कि वेरी आप गुड जनाब शुरता साहब, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसके नहीं उनको अंदर ना पसंद तो एक पाकिस्तान चीज़ छोड़ काबिल दे। गौर है। अहमद अली भाई एक मिनट ठहरिएगा। ये शुरता भाई इन्होंने ये जानबूझ के, यार मैं समझता हूँ कि ये इनके ऊपर एक किस्म का ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एहसान किया है, ये काफिर डिक्लेयर करके। जेन्युइन बता रहा नहीं हूँ नहीं, काफिर नहीं बोला उन्होंने, बोला कि ये मुस्लिम नहीं है। राजा साहब क्या बोला उन्होंने? ठीक है, काफिर तो वो होता है ना कि जो किसी को ना माने, कि नहीं? राजा साहब बताते हैं आपको। नहीं एक सेकंड ठहरे। अच्छा अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि अगर ये इनको ऐसे यहाँ से बैन ना किया जाता और ऐसे ना निकाला जाता, तो भाई सिंपल सी बात थी, फिर इनके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अड्डे कैसे चलते, इनकी ये जो कब्रें बेचते हैं, इस कारोबार में इनको कैसे तकवीत मिलती, मजलूम कार्ड कैसे खेलते, असाइलम्स कैसे मिलते हैं इनको। ठीक है, अभी जिस मरज़ई को टुट्टी भज्जी अंग्रेज़ी भी नहीं बोलनी आती, जिसे साइकिल और साइकिल में फ़र्क नहीं पता, वो भी जर्मनी के वीज़े लगा के बैठा हुआ है, पहलवान बना हुआ है, तो इनको ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुए, इन्हें खुश होना चाहिए। ये ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਰੋਟੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। खलीफा वक्त साहब, पीर साहब के कोई सवाल है? जी पीर साहब आने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब। भाई खैरियत है? सब खैरियत से हैं दोस्त? अच्छा राजा साहब, आपसे चंद सवाल।
चंद सवालात हैं मेरे, अगर आप मुमकिन हैं तो जवाब दें। जी हजूर, अलशुर्ता साहब मुझसे सीनियर है, देखते हैं कौन देता है जवाब। नहीं, मैं चाहता हूं आप ही दें। मैं चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड मुझे दे दें, उसके बाद मैं आपको अस्कानी साहब आपकी तरफ माइक ले जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लोग जो आए थे ये कह रहे थे कि इस तरीके से बात करना चाह रहे थे कि जैसे ये किसी ने पढ़ी नहीं है और उनके पास कोई दलाइल नहीं थे, और ये बात ये कर रहे थे ये खत्म नबूवत के बारे। और भाई सारी अक्ल के अंदो, थोड़ी बात तो सही, ये सारी जो दीन की बात हो रही है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि किस तरीके से हम इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल, दे आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो तो ऐसा भी होगा। जी अस्कानी साहब, मैंने बात मुकम्मल कर ली, आप अब अपनी तरफ से क्या सवालात लेके आए वो पूछ लें उनसे। जी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम राज जावेद, तैयार हैं आप मेरे भाई? जी जी हजूर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, ये जो फैसला हुआ है अहमदियों के ख़िलाफ़, ये शरई था या कानूनी? देखें, पाकिस्तान की असम्बली में, कानून साज असम्बली जो है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो कि शरीयत के खिलाफ हो। सो आप इसको कानूनी और शरई दोनों कह सकते हैं। तो आप इसको कानूनी और शरई दोनों कह सकते हैं। तो आप इसको मोहतरम जावेद साहब, देखें, मैं भी जानता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप एक वकील हैं, लेकिन वास्ता हमें भी पड़ता है एक कोर्ट कचहरी का। आप देखें, जो शरई मसाइल होते हैं वहाँ जजेस अलग हैं, जो कानूनी मैं आपको अगर यहाँ पर ही जवाब दे दूं, ये शरई अदालत का फैसला मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। इन्होंने शरई अदालत में इसको चैलेंज किया था और वहाँ से भी यही फैसला आया था। नहीं मोहतरम जावेद साहब, जो मेरा सवाल है आप उसी पर फोकस करें अगर मुमकिन हो तो। भाई, ये शरई फैसला था या कानूनी फैसला था? दूसरों ने चैलेंज किया, शरई अदालत ने उनको चैलेंज किया, इससे यही जाहिर होता है कि शरई अदालत में ये फैसला नहीं हुआ। इससे तो यही जाहिर होता है ना, अगर शरई में होता तो वो उसी में चले जाते जहां चैलेंज हुआ है। नहीं, तो शरई अदालत में ये गए ना, तो शरई अदालत ने अपना फैसला दिया ना। नहीं, वो भी वही फैसला आया जो नेशनल असेंबली का फैसला था। ये कब हुआ? ये मैं डेट मुझे देखनी पड़ेगी, जो ही ये फैसला आया ना उसके बाद ये स्ट्रेट वे चले गए थे शरई अदालत में। मतलब ये जो फैसला शुरू में जो हुआ जी, वो कानूनी था? जी, ये कानून साज असेंबली है ना, पार्लियामेंट। तो जी, हाँ, मैं समझ गया, वो कानूनी फैसला था। जी जी। बाद में इन्होंने अपील किया जी, शरई अदालत में, शरई अदालत में, पाकिस्तान की शरई अदालत में, बिल्कुल। अच्छा, तो लेकिन शुरू में जो फैसला हुआ है वही अप्लाई हुआ इन पे ना, या उसके बाद जो हुआ है, मनोअन वही हुआ है। अच्छा, बाद में जो फैसला, बाद में जब उन्होंने चैलेंज किया शरई अदालत में, वहाँ क्या फैसला हुआ? कि ये गैर मुस्लिम है, कि पार्लियामान का फैसला दुरुस्त है, और जो प्रेसिडेंशियल डिक्री बाद में आई है वो भी दुरुस्त है। यानी अपील में ये बात वापस यही आई? जी। अच्छा, ठीक। अच्छा भाई, ये जो अभी हमारे भाई बात कर रहे थे शुरता साहब, इससे क्या ताल्लुक है, इन बातों से क्या ताल्लुक है? मतलब मैं बता देता हूँ आपको। मतलब ये एक मिनट में मजीद वजाहत करूं। जी जी, बता। मतलब ये जो सवालात हैं इनका क्या तुक बनता है कि कोई गैर मुस्लिम है या मुसलमान है? इसका तो कोई मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि इनका ये कहना है कि कोई रियासत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती, किसी के मजहब या ईमान पर फैसला नहीं कर सकती। अलशुर्ता साहब जो बात पढ़कर सुना रहे हैं वो स्टैब्लिश ये कर रहे हैं, या जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो ये बात एस्टाब्लिश कर रहे थे कि देखें, हर एक मुल्क में पार्लियामान को ये इख्तियार है कि वो मुदाखलत करे, और वो मुदाखलत कर सकती है। जैसे वो मिसाल दे रहे थे कि जो क्रिश्चियन का एक सेक्ट है
جو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے ان کے مذہب میں ہے، مگر امریکہ میں ان کو اجازت نہیں ہے اس بات کی، اور امریکن ریاست جو ہے وہ اس بات پر مداخلت کرتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ قانونی جرم ہوگا۔ اسٹیبلش اصل میں بات یہ ہو رہی ہے وہاں پر، ان کا مطلب جو یہاں پر موقف تھا وہ یہ تھا کہ ریاست مداخلت نہ کرے ہمارے مذہب میں، ہر بندے کو اپنا مذہب، وہ کون سا مذہب رکھنا چاہتا ہے اس کو اختیار ہے۔ تو ہمارے اٹارنی جنرل صاحب یہ اسٹیبلش کر رہے تھے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اور یونائٹڈ نیشن کا جو قانون ہے اس کے تحت بھی ریاست جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا، وجہ یہ تھی ان کے پڑھنے کی۔ شفتا صاحب اگر آپ کچھ اور ایڈ جی کرنا چاہتے ہیں جی، میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جیسے